ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः। हरि ओम। ॐ आज कौन करेगा समरी? देवाशीष। अच्छा भाई देवाशीष करो। हाँ। जननी शारदं देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। Pranam Maharaj. नमस्कार। Today, today's topic is Paramartha Prasanga, towards the goal supreme. I will touch almost all the points, barring some points which I clubbed together and omitted some as I felt that it was a repetition and time is approximately 16 minutes. Okay. Necessity of a guru. The guru alone direct you to the right path. That is why spiritual knowledge has to be acquired directly from the guru. Know that the initiation and instructions given by him is the only path for you to follow. If you do the spiritual practice as enjoined by him unswaveringly or strong and steady way and with full faith in them and in him, you are sure to achieve success in course of time. Qualification of an aspirant. To realize God, an aspirant must have patience, perseverance, purity of body and mind, intense desire or yearning, the aggregate of 6 attributes, namely Shama, Dama, Uparati, Titiksha, Shraddha, and Samadhana. Asana. Asana is the posture in which one can sit for meditation steadily and with ease for a long time. But the spine has to be kept straight, and the chest, neck, and head should be held erect so that the entire weight of the upper part of the body may fall on the ribs and the chest may not sag. How to quieten the mind? When we begin meditation, first sit steadily for a while and watch the mind. Let, let it wander wherever it pleases. Think that you are the witness, the seer. Sit watching how the mind floats and sings and runs and skips. Keep thinking, I am not the body, not the senses, not the mind. I am altogether separate from the mind. I am the Atman, self, the matter. The mind is my servant. Whenever any idle thought arises in the mind, try at once to put it down forcibly. Breathing during meditation. Do not pay too much attention to watching your breath, nor make this a guide by which to regulate your activities. World is insubstantial and transitory. Your mind will inevitably be restless at the time of meditation. So long as idea has not taken firm root in you that the world is insubstantial, flimsy, fragile, weak, and transitory, temporary, transient, and that He alone is only reality. Love of God will grow, and at the same time, mind will become calm to the extent that one is freed from the thrust for sense pleasures. All the pleasures of the world will become trivial and distasteful if even a particle of his love is experienced. Kumbhaka or one pointedness of the mind. When the mind is absolutely calm, breathing becomes steady and kumbhaka, retention of breath, follows. When breathing is steady, the mind becomes one pointed. Bhakti, love of God, also brings about kumbhaka without effort, and breathing becomes steady. Even without practicing yoga or pranayama, is attained, control of breath is attained automatically if one remembers and thinks of the Lord and does japa with a yearning heart. There is no other easy or convenient method
to achieve one-pointedness of mind except by abhyasa or repeated and sustained effort, and by vairagya or non-attachment to worldly objects. Inner longing for the Lord. Whatever be the time you devote to japa and meditation, even it is only 10 or 15 minutes, do it with all your heart and soul. The Lord is indweller, the inner guide. He sees your heart. His measure is not how long you meditate on him, nor how many times you do japa, but by your inner longing. Self-effort, purushakar. Purushakar is necessary for spiritual attainment. Resolve firmly, I will realize God through my own efforts by doing spiritual practice, and go on steadfastly practicing japa and meditation, seated in proper posture for at least 2 hours every morning and evening for 3 or 4 years, and see if you succeed or not. Self-confidence. Never think yourself to be weak. Have the firm faith in yourself. Think, there is nothing that I cannot do. I can do everything if I will. One who has no self-confidence does not have real faith in God. Swami Vivekananda has said that the real atheist is he who has no faith in him. Nobody listens to the words of one who has no self-confidence, and God also does not listen to his prayers. Meditation and japam are the main thing, and never miss them for a single day. However occupied you may be, or even in times of sickness or infirmity, in misfortune or calamity, in such circumstances, you cannot or do not find it convenient to carry on your practice in full measure. Make salutation, pray, and do japa for at least 10 or 15 minutes. Meditation on the form of your chosen ideal. When doing japa, meditate on the form of your chosen ideal. Otherwise, japa never becomes deep. How to stop dozing off at the time of japam? Japa and mental repetition of the mantra, counting it on the fingers, using a rosary, or keeping the number of the repetitions, all these are only preliminary means to help withdraw the mind from other objects and fix it on the object of worship. Otherwise, you will not know when the mind may have run away in another direction, or you may have dozed off. Spiritual experience. Do not tell anybody else except the Guru the realization, the visions, or similar experiences that spiritual practices may bring to you. Always keep your spiritual treasure, your inmost thoughts, hidden within you. These are your sacred possessions, to be shared only between you and the Lord in secret. Likewise, do not talk of your defects and blemishes to others. You lose thereby your self-respect and the respect of others for you. They are for you to confess to the Lord. Pray to him for strength to overcome them. Pranayama or yoga. It is not good for householders to do much pranayama or yoga. Mind becomes guru. When by continued practice of japa and meditation, the mind will have become calm and purified, then mind itself will be your guru or guide, and you will have proper understanding of everything and find the solution of your spiritual doubts and questions within yourself. The mind will tell you what you should do, one thing after another, and how you should conduct yourself. Hope is life. Hope is the source of all strength and effort. If hope is given up, one suffers agonies of death, becomes dead, though living. Cling to hope till the last breath.
Never, till death comes, give up the hope of realizing God. If He so wills, He may shower His grace upon you at any time. Have this faith that He may perchance or by chance reveal Himself to you even at the last moment. Siddha Mantra. When God, in His unlimited or boundless mercy, has through the Guru imparted the Siddha Mantra, which is the key to the portal of his sanctuary, know that he has given himself away freely. But it is necessary for you to have that firm conviction. If you lose that invaluable jewel through carelessness or negligence, know that you are unfit for his grace. The right appreciation of this gift is the practice of the mantra and the instructions imparted by the Guru with your whole heart and soul until the goal is reached. Only by doing so will you be able to repay a part of the debt to him. The more you realize that God is nearer and dearer to you than your near and dear ones, the more you will be recipients of his grace. Through his grace, you will be free and ever blissful even in this life. Renunciation. Real renunciation is of the mind. If you give up the world mentally, it is the same whether you remain in the world or the forest. God is God in your world. If you have to be in the world at all, make God your world. Set up your home with Him. Whatever you do, see, hear, think that to be God. Prayer. You must feel a real want within for what you pray. Suffer intense pain and agony as long as your prayer is unfulfilled. You have to be restless to find out the way and the means of gaining the object of your prayer. In spite of insuperable or insurmountable difficulties in your life path, and to strive heart and soul to achieve it as if life itself dependent upon it. Only then will your prayer be answered and your heart's desire is fulfilled. Attaining realization, highest knowledge, devotion, spirituality, these are only be acquired through great self-effort. One has to struggle hard to win them. Then only do they become one's own and enduring, lasting over a period of time, filling the mind with joy unspeakable. None can make a gift of these to another. Spiritual practice has to be diligently performed. Then only can realization be attained. To make spirituality one's very own means saturating oneself thoroughly in the idea of the realization of the self, so that one's nature is wholly changed and an entirely new personality is developed. It is like being reborn again in this very body. Such a thing is possible only if one is wide awake and strives for it to the utmost, as if one's whole life is at stake. Thus, one continues spiritual practices without interruption and with single-minded devotion as long as the goal is not achieved. Unselfishness. If you give up your small self for the sake of others, you will not only find your real self, but will also make others your own. The more you seek to save your little self, the more you lose your true self and estrange others. Whining or self-pity. Whining or self-pity is of no use at all. I am too wretched, worthless, vile, weak. I cannot do anything by myself. These are the words of the namby-pamby, the do nothing imbeciles. Get up, start walking, and as you
proceed, the road will grow shorter. Courage, strength, hope, unexpected help will come. The path will gradually become easy and straight, and in no time you will reach the goal. Oh, the joy of the fulfillment. Relationship of a guru and disciple. The relationship between guru and disciple is of a purely spiritual nature, pertaining to the spiritual matters only, service or worship. Worship with desire for fruit does not purify the mind. Sri Ramakrishna could not accept or even touch anything offered to him with some underlying desire or motive. To realize God in this life, one has to do sadhana, spiritual practices, with all one's strength and ability to offer one's all to him, and if possible a little more. Uh, go on with your sadhana to the best of your ability, but always have this firm conviction that however hard you may strive, it is as nothing. It can never be enough when the goal is the realization of the self. For ultimately, this goal can only be attained by His grace. Sri Ramakrishna Arpanamastu. हो गया महाराज. Thank you. Devashish, very good. Very good. You see, actually, these Paramarth Prasam very difficult to summarize. वो तो क्या है कि जैसे गीता है उसको एक एक रोज पढ़ना चाहिए, वैसे ये परमार्थ प्रसंग को भी रोज पढ़ना चाहिए. ये हम लोग शुरू में साधना के समय ब्रह्मचारी वगैरह जब देते थे, हम लोगों को ये रिकमेंड किया जाता था कि रेगुलरली उसको पढ़िए. तो आप लोग इसको जूम से ले लीजिए या फिर किताब परचेज कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसको रेगुलरली पढ़ते रहिएगा. इज दैट ओके? ओके. अच्छा, अब आए क्वेश्चन शुरू करें. जी. अच्छा, इतु बोलो, इतु क्वेश्चन करो. जी प्रणाम महाराज. मेरा पहला प्रश्न है, तीव्र आकांक्षा या व्याकुलता, भगवान के लिए व्याकुलता या तीव्र आकांक्षा कैसे अनुभव करें? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जब तक संसार में संतोष होगा तब तक भगवान के लिप ले ले व्याकुलता नहीं होगी. जीवन में असंतोष होना चाहिए. और ये असंतोष याद रखिए, कुछ कुछ ऐसे संतों की जीवनी है जो उन्होंने अपनी पत्नी थी और पत्नी ने कुछ उन्होंने बात कही करने को, पत्नी ने मना कर दिया, बस हो गया. उससे सारा जीवन बदल गया. वो संसार छोड़ के चले गए, भगवान के अंदर सारा चला गया. जी. तो जीवन में असंतोष, अशांति, दुख जो है वो कंटिन्यूअस हो रहे हैं. जी. भगवान बुद्ध ने भी तो क्या किया था, उन्होंने तो केवल देखा था, उनके जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं था. उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, एक बूढ़े को देखा और बीमार को देखा, और उसी से उनके जीवन में असंतोष, तीव्र असंतोष हुआ. तो असंतोष विचार के द्वारा हो सकता है, लेकिन ये चीजें जो हैं, ये असंतोष हमारे जीवन में कंटिन्यूअसली हमको पता चलेगा कि ये जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें कहीं शांति नहीं है. तो ये असुख, अशांति, दुखपूर्ण है संसार, देह नश्वर है, इसका विचार करने से भी व्याकुलता आ सकती है. और जैसा कहा ना कि सेंसिटिव पर्सन्स को तो उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बात घटना ही हुई तो हो जाएगा. अरे बूढ़े तो रोज मरते हैं, मरने वाले तो रोज मरते हैं, और बीमारी तो होती रहती है. भगवान बुद्ध ने तो एक बार देखा, उससे हो गया, और ऐसा असंतोष हुआ कि वो संत बन गए, उन्हें बुद्ध बन गए. तो व्हाट मोर एग्जाम्पल कैन यू वांट? ये जीवन में हमारी दुर्भाग्य है, हम लोग कितने इंसेंसिटिव हैं, इतने इंसेंसिटिव हैं कि रोज सुबह शाम चांटे पड़ते रहते हैं, दुख होते रहते हैं, लेकिन जहाँ के वह वहीं रहते हैं, ना ताने
ताने लगते रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, बच्चे तंग करने लगते हैं, लेकिन जहाँ है वैसे ही के वैसे रहते हैं। तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट। जी व्याकुलता आचार विकार करिए, ट्राई टू मेक योरसेल्फ मोर सेंसिटिव, भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करिए, जीवन में अशांति देखने का प्रयत्न करिए। दुर्भाग्य यह है कि जो लोग ठीक ठीक संत है ना, जो लोग ठीक ठीक आध्यात्मिक हैं, उनका जीवन जो है वो बड़ा अशांत, प्रारंभ में अत्यंत अशांत हो जाता है। उनको किसी चीज में सुख प्राप्त नहीं होता है, और ऐसे लोग, बहुत कम लोग उसको सहन कर पाते हैं, और इसीलिए अपना मन को संसार में लगाते हैं। थोड़ा बहुत जहाँ भी सुख हुआ उसमें वो संसार को मन को लगाने का प्रयत्न करते हैं। वो सेंसिटिविटी बनी नहीं रहती है और व्याकुलता बनी नहीं रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है, और उसके लिए कंटिन्यूअसली प्रयत्न करना पड़ेगा। संसार में जो कुछ हो रहा है उसको सावधानी से देखकर व्याकुलता बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? जी जी। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है, संसार अनित्य, असार अनित्य है। तो मेरा प्रश्न है कि संसार अनित्य है, ये तो समझ में आता है, परंतु इसका दिन प्रतिदिन हर समय अनुभव नहीं होता, ये कैसे लाया? वही अभी तो यही डिस्कस किया, वही बात है, बिल्कुल वही यही बात है। हाँ। यानी विषय सुख, संसार सुख से आश्रय ने अप्रिय लगना चाहिए। विषय सुख या संसार सुख जो है वो हमको प्रिय लगते हैं, उसको अप्रिय लगना चाहिए। यानी उसके बाद में बुद्ध को जब व्याकुलता हुई, उसके बाद में अपनी यशोधरा को इतना प्यार करते थे, वो प्यार नहीं लगा उसको। यानी वो असारता, संसार की असारता, अप्रियता जो है उसको कंटिन्यूअसली बना रखना चाहिए। जी। और भोगों के विचार को नष्ट करो। रे मन, इसी को भोग कहते हैं। 2 दिन के लिए खाया और चला गया, इसी को तो भोग कहते हैं। ठाकुर क्या करते थे? लड्डू खाने की इच्छा हुई तो मुंह में इधर उधर करके घुमाया। हाँ, उसको कह रहे मन, इसी को तो खाना कहते हैं, लड्डू खाना कहते हैं, रसगुल्ला खाना कहते हैं, और मन को हटा लिया। तो विचार भी होना चाहिए, क्योंकि सारा संसार जीवन में दुख ही दुख है। उसको बनाए रखने के लिए विचार करना है, बहुत important। जी। अगर जप की मात्रा बहुत बड़ा है तो क्या थोड़ी थोड़ी व्याकुलता आ सकती है? अगर मन को भगवान से, ठीक है, व्याकुलता ऐसा है कि 2 प्रकार की व्याकुलता हुई। हमने अभी जो बात की है वो है, वो हुआ है कि संसार की अनित्यता और दुखपूर्णता को देखकर व्याकुलता, और दूसरी व्याकुलता हो भगवान के प्राप्ति के लिए व्याकुलता। तो मन को एकाग्र करके ध्यान जप के समय केवल जब मेंटली बुट 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 राम 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 करने से होगा नहीं, उसके साथ ध्यान होना पड़ेगा, उसके साथ में रस आना पड़ेगा। जप के साथ में आनंद होना चाहिए, रस आना चाहिए, अपने इष्ट का चिंतन करने से सुख मिलना चाहिए। और तब ये सुख अगर बढ़ता जाएगा तो इस सुख को प्राप्ति के लिए व्याकुलता है। तो 2 प्रकार की व्याकुलता हुई। एक तो जैसा हमने अभी कहा कि अनित्यता और दुखपूर्णता का विचार के द्वारा और अनुभव के द्वारा, और दूसरा है भगवान की सुखपूर्णता और ध्यान में जो आनंद आता है उसके द्वारा। 2 प्रकार से व्याकुलता हो सकती है। तो ये है इसको, हाँ, दूसरों के लिए ये नहीं, यही करना है। समझा हो गया ना तुम्हारा? जी नहीं, मेरा था ये प्रश्न तो हो गया। थर्ड प्रश्न है, परमात्मा तुमसे रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा, इसके बारे में मेरा प्रश्न है। परमात्मा यदि स्वयं कृपा करें फिर भी हिसाब लेते हैं, और उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकता है? अरे, जितने लोगों को कृपा हुई है परमात्मा की, उनके जीवन में जितना कष्ट हुआ है उनका और किसी से नहीं हुआ है। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण का कष्ट पर कृपा हुई थी, तो और स्वामी विवेकानंद का सारा जीवन दुख में ही बीता। जी। माँ शारदा ने क्या कहा था? एक वो कोई भक्त था, उसको कष्ट हो रहा था, तो माँ ने एक उंगली से थोड़ा बता के कहा, इतना सा कष्ट हो रहा है।
हम्म, कोई अक्षय चंद्र थे या कोई थे, उसको इतना कष्ट हो रहा है, जरा उंगली से बताया जाता है ऐसा, ये इतना कष्ट है बस। अरे इतना कष्ट है, वो एक भक्त खुद ही आए थे वहां कि माँ बड़ा कष्ट हो रहा है, ये तो थोड़ा सा है, इतना कष्ट है। भगवान की कृपा से, भगवान जिस पे कृपा करते हैं ना, उनको कष्ट और देते हैं कि इस जन्म में देते मुक्त हैं। हो जाए बाबा। हाँ तो जी। उनके जीवन में तो मैंने तो कितने सीनियर साधु को देखा है, माँ शारदा के शिष्य देखे हैं, ब्रह्मानंद जी के शिष्य वगैरह, उनके हम्म, जीवन में कितना कष्ट था। हम्म, तो आप ये मत सोचो, एक दिशा मत सोचो, जी। वो जो है वो दूसरों के लिए पूरा, अगर यानी कष्ट की बात छोड़ो, भगवान से प्रेम पूरा होना करना चाहिए। हमारी दृष्टि से मत सोचो, भगवान की दृष्टि से तुम क्या समझौता चाहते हो। अब भगवान, हम भगवान के से हमने किया है, भगवान हमारा कष्ट कम कर देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यार कॉम्प्रोमाइजिंग विद गॉड, महाराज जी, नहीं इसका ये नहीं। मतलब, ठीक। महाराज जी इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जिंदगी सब ठीक ठाक चल रहा है वहां कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ, ये भी कहीं से कहीं पे आया है, ये हमारे लिटरेचर में कहीं पे है। बिल्कुल अगर ठीक ठाक चल रहा है तो समझदार कुछ प्रॉब्लम स्वामी है। जी नहीं बताया है, स्वामी जी नहीं हाँ, बताया। जो भी हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, महाराज जी, एक सवाल ये है कि हाँ, जैसे आपने कहा कि जीवन में कष्ट आते रहते हैं, हाँ, और जितने कष्ट आएंगे उतने ईश्वर नजदीक जाते हैं, तो हाँ। साधु जीवन अपनाने के बाद भी कष्ट आते रहते हैं क्या? अरे तो साधु जीवन जो है ना, वो तो कष्टमय है। कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। नहीं, पर कष्ट आते हैं क्या उसमें? तो क्यों नहीं आएंगे? आने का क्या मतलब, वो तो बेसिक बेसिक कष्ट का जीवन है, असुविधा का हाँ। जीवन है। किसी ने एक ने स्टेटमेंट किया है, एक साधु कहीं जीवन का, रामकृष्ण मिशन के साधु का है या कुछ है, महाराज आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा असुविधा असुविधा जीवन में होती नहीं है, आपको बड़ी असुविधा होती है। तो उन्होंने कमेंट दिया था, साधु जीवन असुविधा का जीवन है। तो तुमको तो लगता है वह बड़े मजे में है, ब्रह्मेश्वर महाराज बड़े मजे में हैं, कुछ तकलीफ नहीं है इनको, वाह वाह बड़ा बढ़िया है, आ जाओ ना, बनो ना, किसने मना किया तुमको साधु बनने को। महाराज जी, हमने हमने एक चीज देखी साधु जीवन के अंदर, जो निकटता आई उससे ये मालूम पड़ता है कि एक चीज का त्याग करने पे 1,00,000 चीजें साधुओं को मिलती है। हमें कोई प्रणाम नहीं करता, आपको हजारों लोग प्रणाम करने के लिए लाइन में खड़े हैं। प्रणाम हमारे से पास क्या उसमें, होता है? मोटर, आपके पास दर्जनों मोटर तैयार है। प्रणाम क्या? अच्छा वो ये जो है हाँ, आपकी दृष्टि से सुविधा है, हाँ, हमारी दृष्टि से सबसे अधिक असुविधा है। ठीक हाँ। है। आप लोग तो प्रणाम करते हो, हमको क्या वो लगता है, क्या मजा आता है क्या? अरे हम हाँ, तरसते महाराज जी, हमें तुम लोग हमारे प्रणाम पिता को भी अच्छा प्रणाम। समा, हम तो बोर होते हैं। नहीं, महाराज एक ये देख रहे देखो, हैं जैसे दूसरे प्रकार की असुविधा हो जाती है बाबा। ठीक, बराबर। और भागते पाप रहते भी बाबा, तो, कमरे में रहो, भक्तों का बाहर पाप भी तो चला जाता है। बाहर निकलेंगे कि इतने लोग पकड़ लेंगे हमको, सब प्रणाम प्रणाम करने लग जाएंगे, खड़े रहना पड़ेगा। हम तो आराम से जा रहे थे, अपना प्रोग्राम कर रहे थे, सब डिस्टर्ब करते हैं, ये नहीं सोचते। हाँ, और दूसरे प्रकार की बहुत सारी असुविधा हो जाती है बाबा। हाँ, महाराज, हाँ? महाराज इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछूं? हाँ, प्रणाम बोलो। से रिलेटेड। हाँ, हाँ, कि जैसे स्कूल में ना सभी बच्चे भी मुझे प्रणाम करते हैं, तो मैं मना करती हूँ कि गुड मॉर्निंग ठीक है, दूर दूर से हो जाता है, पर पता नहीं वो प्रैक्टिस ऐसी ज्यादा हो जाती है, तो कई बारी लगता है कि हम उस लायक नहीं है, पर बच्चे करते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? फिर क्या करें? क्या लायक नहीं है जो हम? जो महाराज, हम प्रणाम के लायक नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, कि मतलब वो पाँव छू रहे हैं ना, मेरे अगर पाँव छू रहे हैं तो हम उसके लायक नहीं है ना, तो हाँ, वो भी शर्म भी आती है और वो एम्बेरसिंग भी होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या करें, ये देखो, एक तो ये तो फॉर्मेलिटी है, सोशल सोशल फॉर्मेलिटी हो जाती है, और सोशल फॉर्मेलिटीज जो हैं उसको आप कुछ अवॉइड नहीं कर सकते।
अच्छा लेकिन ये बात बिल्कुल तुमने बात कही, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ। हम जी लाइन नहीं करते, फिर हम भी ये सोचते हैं कि अरे भाई क्यों प्रणाम कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, हम तो हैं, भगवान भगवान तो है नहीं हमको। और वो लोग क्या करते हैं, जो बाहर गृहस्थ लोग हैं और भक्त लोग हैं, वो साधु को प्रणाम करते हैं भगवान समझकर। जी तो जी उसके वो भाव रहता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और बट उसमें फिर ऐसा है कि एक प्रकार से प्रेरणा मिलेगी कि भाई मैं लायक बनने का प्रयत्न करूं, मैं हाँ अधिकारी प्रणाम करने के प्राप्त करने का अधिकारी बनूं, ये एक हाँ प्रेरणा मिल सकती। जी महाराज हाँ प्रणाम यदि हम इस भाव से ले कि मैं गुरु हूँ, मतलब गुरु हूँ, हाँ। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी प्रणाम लेने, मेरे ख्याल से। है? गुरु का जो क्वालिटीज है वो मुझ में है और आना और चाहिए, ये भाव से प्रणाम लेने में कुछ नहीं है। और तुम जैसा करो करो, मैं क्या, मुझे को मत पूछ। नहीं नहीं, नहीं, शिवानी को बोल रही हूँ मैं बट महाराज, अच्छा साधु शिवानी को को नहीं बोल बोल रही हूँ। नहीं, सही शिवानी बात को है। बोल रही। यू कैन ऑलवेज अच्छा प्रे ठीक है, फॉर योर शिवानी को बोल। चिल्ड्रन। चलो मेरा महाराज फोर्थ प्रश्न है, जैसी साधना वैसी सिद्धि, ये लाइन कृपया इसको किसी उदाहरण से समझाइए, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि कोई कोई इसे तुलनात्मक सहजता से प्राप्त करते हैं और पर्याप्त भोग भी करते हैं। ये किसी क्या किसी को क्या कृपा, प्रश्न है तुम्हारा? तुम्हारा प्रश्न है जैसा साधन वैसी सिद्धि जन ना? साधना जी, जैसे हाँ, तो उसमें प्रश्न क्या है तुम्हारा? जैसे तुम प्रश्न है साधना कि किसी करोगे किसी वैसे को तुमको बहुत सिद्धि इजीली प्राप्त होगी। कृपा हो जाती है है? भगवान की, किसी क्या किसी को इजीली कृपा मिलती है, और किसी ऐसा है? किसी फिर को उसका तो उत्तर यूं कहते हैं कि पहले जन्म में उन्होंने साधना की, ज्यादा किया था। ऐसा अच्छा उत्तर था। दिया जाता है कि पहले जन्म में साधना की थी, इसलिए लगता है कि इस जन्म में उनको जल्दी से होगी। हाँ। जी और अगर कुछ लगे तुमको, जी अगर साधना नहीं, तो याद रखना कि ये गहरी आंतरिक अनुभव नहीं है, छोटा मोटा अनुभव है और समझते हैं इसको बड़ा नहीं। हाँ। बट यू हैव टू पे द फुल प्राइस, याद रखो, यू हैव टू पे द फुल प्राइस। जी ठीक है मेरा प्रश्न सतीश, खत्म आ हो जाओ गया। सतीश। हाँ, सतीश, प्रणाम महाराज। हाँ भाई। महाराज, इसका अर्थ क्या हुआ, यू हैव टू पे फॉर फुल प्राइस? भगवान को तो हम प्यार से कर रहे हैं ना, तो प्राइस नहीं क्या नहीं, उनको सब दुख प्राइस भोगना होगा। भगवान, भगवान से साधना केवल, साधना अगर हम सोचते रहे महाराज, उसमें बहुत टेंशन हो जाता है। नहीं भगवान नहीं, को देखो देखो देखो, हाँ, अपना ये समझ के याद करे रखो, तो अलग होती है। सुनो सुनो, जी। अगर तुमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, अनुभूति हम्म। करना है, तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ये प्रश्न है। हाँ हाँ। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तुमको? महाराज, मेहनत जो है वो अगर हम सोच रहे हम साधना करें, हम साधना करें, उसमें बहुत टेंशन आता है। पर हम नहीं, अगर उसमें हम हाँ, साधना कर रहे हैं, अब साधना ये पूछना वो क्या है, तो रूटीन बन जाना चाहिए तुम्हारा। रोज थोड़ी हम्म, सोचना चाहिए कि साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये तो एक ही रूटीन बन जाना चाहिए। हम्म। और उनको लगना और चाहिए कि ओहो, आज मैंने रूटीन पूरा नहीं किया। नहीं फिर हमारा ऐसी स्थिति आने, मेरे हिसाब से जैसे स्थिति आना चाहिए, जैसे कि साधना अपने आप हो, मतलब पार्ट तो ऑफ लाइफ। इसके लिए हमको ये नियम में बांधो, वो नियम में बांधो ना, सब समय ना ना, मन में ये रखो कि सुनो, हम साधना नियम करें। जितने जितने भी नियम है साधना के, ये प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, हाँ, यही बोल रहे हैं। उसके बाद में रूटीन हो जाते हैं ये, हम्म। जो साधक के लिए रूटीन हो जाते हैं ये। जी। और शुरू शुरू में सुबह 5 बजे उठना है, मुंह हाथ हम्म धोना है, ध्यान जप करना है, हम्म 1000 जप करना है, ये जो है वो कुछ दिनों के लिए होता है शुरू में, उसके बाद में ये रूटीन हो जाता है, उसके बाद फिर नियम थोड़ी बनाना पड़ते हैं। महाराज जी, इसी को सहज अवस्था बोलते हैं, सहज हाँ, वो तो अवस्था। साधना जो अपने आप है में। वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, एंड देन दैट मींस इट यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। हमें सारा सारा जीवन जो है वो साधना जीवन जीवन होना चाहिए, हम्म। तो उसमें फिर नियम बनाने की क्या प्रश्न है? हम्म। दैट मींस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। थोड़ा नियम बना लिया, फिर नहीं किया, अरे फिर नियम बनाया, अरे ऐसा क्या? इट मस्ट बिकम ए नियम। हम्म। चलो जी। सतीश ने कहा सतीश,
यही थे अभी तो। प्रणाम महाराज। हाँ भाई चलो। Maharaj, my first question is para 18, page 9. The Guru alone can direct you to the right path. That is why spiritual knowledge has to be acquired direct from the Guru. One should not practice spiritual practices directly following scriptures. Maharaj, my question is, after having practiced for some period as per the initiation given by the Guru and hearing the scriptures from his mouth, can one thereafter take the help of scriptures, or for that matter any other spiritually advanced person for clearing one's doubts or queries? यस 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 यस। एक्चुअली गुरु से दीक्षा हो जाती है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है, उसके बाद में बार बार आवश्यकता पड़ती है। इनको जो है दूसरे गुरु हैं उनको बोलते हैं शिक्षा गुरु। जो पहले मेन गुरु हैं उनको बोलते हैं दीक्षा गुरु। जिन्होंने मंत्र दिया है, बेसिक दिया है, वो दीक्षा गुरु हैं। और उसके बाद में शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, शास्त्र भी हो सकते हैं, दूसरे गुरु भी हो सकते हैं। जी 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 जी। कई बार तो अपने मन से ही उसका जो है वो क्वेरीज का जो है वो उसका रिस्पॉन्स आ जाता है ना, वो तो बाद में होता रहता है, कोई बात नहीं। बेसिक जो है उसको होल्ड ऑन करना है। ठीक ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या, अगर हमारी इनिशियल ट्रेनिंग हो गई तो उसके बाद तो दिक्कत नहीं आती। बाद हम कोई दूसरों को भी सुन लें तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कैन उसको मतलब हमें ये नहीं ऐसा है जैसा मैंने कहा अभी जो बात हुई थी, आप इनिशियल ट्रेनिंग जो है उसके बाद ड्रॉप करने का प्रश्न क्यों हो गया? वो तो स्वभाव हो गया आपका। जो मंत्र मिला है उसके आप वो मंत्र कर रहे हैं, उसके आप ध्यान जब कर रहे हैं उसका नियमित रूप से, तो अब वो ड्रॉप करने का प्रश्न नहीं होता। वो तो बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ और हैबिट। ड्रॉप नहीं, मैं कहने का मतलब कि उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कुछ और ऐड कर सकते हैं। वो दैट ऑफ कोर्स वो आफ्टरवर्ड्स होता है, जब तुम्हारा मन भी गुरु हो जाएगा, तुमको पता चलेगा क्या करना क्या नहीं करना। राइट। That answers my question. Next question. Hope is life. Para 20. Hope is life. Hope is the source of all strength and effort. If hope is given, one suffers agonies of death, becomes dead through though living. Maharaj, in para 7, Swami says, to realize God, one must devote oneself to the task, heart and soul. 100%. Not even less by a millionth part of 1%, or the minutest fraction thereof. महाराज, जब हम ये सुनते हैं तो हम तो इतना नहीं कर पाते। हम तो ये जो है मतलब कि 100% हमारे लिए देना तो संभव नहीं है। तो then how can one sustain hope to realize God in the circumstances we are under? ऐसा है, ये देखो दो चीजें, होप की बात एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, और 100% करना है, लेस देन 1% भी, 0.1% भी नहीं, कम नहीं करना है, ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में की गई है। डोंट मिक्स अप द टू कॉन्टेक्स्ट। राइट महाराज। होप तो बेसिक है, लेकिन तुमको संघर्ष तो करना है ना, और पूरा संघर्ष करना है जी। पूरा संघर्ष तो करना पड़ेगा तुमको। राइट। मार्ग में आए हो तो पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। राइट। अब उसमें होप का प्रश्न कहाँ उठता है यहाँ पे? डोंट मिक्स अप। जी। हमारा जो कॉन्फिडेंस है होप डामाडोल हो जाता है महाराज, हम उतना नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। अब उसका क्या करोगे? तो करना तो चाहिए, आपको करना पड़ेगा, और क्या करना। कॉन्फिडेंस का क्या प्रश्न होता है? तो करना है तो करना है। जी। लेकिन फिर उसके बाद फिर भी होप रखनी चाहिए कि भगवान कृपा करेंगे, कभी तो करेंगे, चाहे एट द लास्ट मोमेंट करेंगे। देखो ऐसा है कि कृपा पे डिपेंड नहीं, हमारे ऊपर जितना है उसको तो करो। जी। खुद करेंगे नहीं करेंगे, कृपा तो कृपा तो है जो वो है ना, कि भगवान जो है वो कृपा तो करना चाहते हैं, हम ही कृपा स्वीकार नहीं करते हैं। राइट महाराज। भगवत कृपा तो हमेशा हवा बह रही है, पाल तुलना पड़ेगा ना। राइट। नहीं चाहते, भगवान की कृपा तो बनी हुई है। ये सेल्फ एफर्ट जो है उसके बिना भगवान की कृपा भी काम नहीं करती है।
जी जी सेल्फ और एफर्ट कुछ नहीं करना ये तो पड़ेगा। करेंगे नहीं, हम कहेंगे मा- कि हम होप कर रहे हैं, क्या महाराज करें हैं ये महाराज डिसीजन। ये जो इसमें बंगाली में है, যদি গুরু কৃপা করে পাইয়ে দেন তো কথাই নেই। আর তা কি হয় গো, সে যে করার করা তস্য করা আপন গন্ডা বুঝে নেবে। মানে वी हैव टू स्ट्रगल, पूरा दम से स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। हाँ, वही हाँ तो है, वही तो मैं कहा कि भगवान की कृपा कृपा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा रूपी हवा तो बह रही है। हाँ अब पाल नहीं तुला आपने, हाँ। गंगा में हवा में चल रही है, पाल नहीं तुल पहल नहीं खींचा आपने, तो क्या करेगी हवा, क्या करेगी? हाँ, जी जी तो इधर उधर नाम लग इसलिए जाती है। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो भगवत कृपा की बात ही नहीं करते। जी जैसे जैनिज्म है तो भगवत कृपा जैसी कोई चीज नहीं है, सब पुरुषार्थ है। हाँ, राइट चलिए। राइट क्या है इस प्रकार करते हो, सब पुरुषार्थ करके करो, बैठे हुए हैं कृपा हो गए। अरे भाई, जब कृपा होगी तब कृपा होगी, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। और महाराज ये पूछा जाए होप कृपा की बात तो कृपा की बात छोड़ देना चाहिए। महाराज ये होप को भी कृपा से जोड़ना नहीं चाहिए। नहीं हो पे कोई भी कृपा को, पुरुषार्थ को भी कृपा से जोड़ो नहीं। अरे कृपा को छोड़ दो ना। एग्जैक्टली महाराज। हाँ, पुरुषार्थ करते जाओ। अपना काम करो। हाँ, जी जी महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो नहीं है महाराज, मेरा ये था कि इट सीम्स दैट स्वामी जी इज डिस्क्राइबिंग द समाधि स्टेट ऑफ ठाकुर। पैरा 24 है, जैसे कि ठाकुर की समाधि का वर्णन कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन inexhaustible bliss, boundless love and infinite peace, and what infinite modes of play does the mother know? Endless are the forms and way in which she plays, one loses oneself in the very thought of it and is merged therein. The beautiful experience, the state of blissful union, is beyond the reach of spiritual mind. वही तो डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं। जी 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 महाराज जैसे ठाकुर की समाधि में उतना आनंद होता था, ऐसा कुछ जैसे लग रहा है, जैसे वो अच्छा, वाह वाह, थोड़ा पढ़ो वहीं से, उसी लेवल पे रहो और क्या, कंटिन्यूसली। जी महाराज चलो कुंडो। ठीक, प्रणाम महाराज। Maharaj, Madam, my first question, Maharaj, para 16 and para 22. It looks like going in circles. Unless the idea of the transitoriness of the world becomes firm, love of God won't grow. Conversely, until love and devotion to God grows, one cannot be aware of the transitory nature of the world. How does one reconcile these two, or how does the psychological process evolve as we continue with our sadhana? वो सबसे पहले वाला डिस्कस किया था ना, व्याकुलता की बात। Yes, गीता Maharaj. की तो घोष ने किया था। हाँ हमने Maharaj. उसमें यही कहा था कि एक तो भगवान के लिए प्रेम करने से व्याकुलता हो सकती है, या फिर संसार के कष्ट भोग करने से व्याकुलता हो सकती है। बुद्ध को तो केवल विचार से व्याकुलता हो गई। कोई व्यक्ति है जो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उससे व्याकुलता हो गई। तो एक ही सेम वन थिंग का है, निगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, और कुछ नहीं है। इवन इन द सेम थिंग, वन इज अ पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग एंड अनदर इज अ नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग। दैट्स ऑल। महाराज, एक प्रॉब्लम तो हमारी मन में है, बचपन से हम लोगों को, मतलब वी आर ट्रेन टू कॉम्प्रोमाइज मीन्स एडेप्टेबिलिटी को एक वर्च्यू बताया गया है कि अंडर constraints also you adapt, and so you learn to compromise and all. Having unwavered devotion also becomes difficult. So we have to unlearn all these things. यस, साधना में एब्सोल्युटली अनलर्न करना। वी हैव बिकम कॉम्प्रोमाइज। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, भगवान से भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, सबसे कॉम्प्रोमाइज करो, और आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आध्यात्म और स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स ओनली ए कॉम्प्रोमाइज। देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गॉड रियलाइजेशन, नो क्वेश्चन ऑफ एक्सपीरियंस इवन। दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस।
Yes, Maharaj. एब्सोल्युटली यूजलेस। ठाकुर Understood. बार बार बोलते हैं बने तो बन जाए, अरे वो नहीं चाहते थे ठाकुर। Yes, क्या Maharaj. कर रहा है, अरे पड़ा हुआ है, संसार में बड़े अच्छे चल रहे हैं, जमे हुए हैं, क्या करना है, चल रहा है तो चलने दो। तो ठाकुर क्या चलना है तो चलने दो, फिर भगवान की बात नहीं करो। Yes, यानी Maharaj. ठाकुर तो अपने गर्दन पे छुरी लगाने तक चले गए थे ना बाबा। यस तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो ये हमारा अनफॉर्चुनेटली our life becomes an absolute compromise, and when it happens in spiritual life it is horrible. Yes, Maharaj. जी महाराज, one tends to give excuses. Yes, exactly महाराज। नहीं, मन का वही है, मन ही प्ले करते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं। दैट इज ट्रू महाराज। इट्स like every time we have to keep going back to these words which you are telling and remember them in our during our meditation. वो तो अरे ठाकुर को पढ़ो ना, वो तो बार बार ठाकुर का व्याकुलता ही तो है। सेंट्रल मैसेज ऑफ ठाकुर इज व्याकुल। Yes, Maharaj. Then next question, Maharaj, अभी डिस्कस हुआ पैरा 18 का स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू गुरु, अंडरस्टूड महाराज। पैरा 19 महाराज, faith works wonders, makes the impossible possible, but we take faith as opposite to knowledge. Our education and training prove to be an obstacle to be faithful. How do you overcome this difficulty? Can you please discuss how faith What is the develops? difficulty? What is the difficulty? Difficulty is जैसे faith, like we have to put 100% faith on what we are hearing from the scriptures, from the guru, and in our own path. So ये faith रख के जब चल रहे हैं, then anyone, like if we are slightly careless in choosing the guru or choosing the scripture, we get some message and we inherently believe in that, and we become fanatic. That is what I am asking. Whereas yes, initially तो आपने पढ़ा ना, इनिशियली तो पढ़ा, इनिशियली गुरु को माना, गुरु अच्छे लगे, आपने उसको स्वीकार कर लिया। अब एक बार स्वीकार कर लिया, उसके बाद में कुछ भी होवे, यदि हमारे गुरु शुड़ी बाड़ी जाए तो भी हमारे गुरु नित्यानंद राय। तो एक बार once you have accepted the शास्त्र गुरु और वो मार्ग, स्पिरिचुअल मार्ग, hold on to that. There's absolute, after that, in that particular thing, do not make any compromise. नहीं, ये हो गया, फिर साधना के दूसरे रास्ते में क्या? I'll just give you an example. Suppose I am साधना के दूसरे मार्ग की बात छोड़। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ महाराज। मतलब प्रॉब्लम ये हो गया कि suppose I have joined a sect and then I have believed in them and I am doing my sadhana, but later on I am being told in the satsang बोलिए, जो भी बोलिए, उनकी जो beliefs है, those beliefs I have to put full faith, and they tell something which my training, like my knowledge means is not, we unable to accept what they don't accept it. Why do you accept it? That is what, तो उसमें faith का तो कोई हानि नहीं होगा ना। Don't accept it. वही पूछो। No, don't accept it. Unnecessarily आपने confusion करोगे। जो तो मत तो पथ अच्छे। तो एक मत पे जा रहे हो तुम, एक मार्ग पे, उसके बाद में आपने तंत्र को बना, अरे बाप रे, यहाँ तो और कुछ लिखा है। फिर जीसस क्राइस्ट को पढ़ा तो वहां और कुछ लिखा है। शास्त्र, हिंदू शास्त्र इतने सारे हैं कि उसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे आप। महाराज इसमें एक इशू और भी है फेथ के मामले में, क्योंकि people with scientific training, they go by logic and rationality, and faith has nothing to do with logic and rationality. So how does one no, but logic and rationality also, they come to a certain conclusion, isn't it? जी But then they have to hold on to that conclusion. हाँ, तो in relation to faith, क्योंकि जब हम that conclusion itself is in a way faith. महाराज अच्छा ठीक है, in a way that is faith. In that case महाराज उसको एक बार समझा दीजिए। लाइक से ठाकुर के साथ एक बार स्वामी जी का बातचीत हो रहा है,
So Swamiji says Andha Vishwas, and Thakur says, you tell me how can Vishwas be Andha? Either you say Vishwas or you say Gyan. Now, can you explain this? इसको समझा। अच्छा देखो, ठाकुर को हाँ। स्वामी जी ने ठाकुर को तो स्वीकार किया नहीं। He did not accept ठाकुर with on faith. Yes. उन्होंने ठोक पीट के देखा, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद स्वीकार किया। Yes, man. So far as Swamiji is concerned, for him there is he believes that there is something like Andhavishwas. But Thakur says non, everyone is not Narendra. नरेंद्र everyone उसको ठेक पकड़ के देखा। ठाकुर को वो उसने पैसा भी उन्होंने बस्तर के नीचे लगा के देखा। Everything he tested, अंधविश्वास से कुछ नहीं लिया उन्होंने। And then when he held on, they held on there. So in the modern times ये चीज है। आज के जमाने में लोग अंधविश्वास में विश्वास नहीं करेंगे। ठीक। पर महाराज यदि स्पिरिचुअलिटी में रहना है तो हमें विश्वास पे जिंदा रहना पड़ेगा, न कि उसको टेस्ट। सुनो, एक बार तुम फेथ बना लो ना, अंधविश्वास हो या आंख वाली विश्वास हो, एक बार बना लो, उसके बाद मत बदलना। यस महाराज दूसरी तरफ उसके बाद मत बदलना। बिल्कुल। उसके बाद में अगर जूम मीटिंग में भी ब्रह्मेशानंद बोलेंगे कि ये तुम गलत बोलो तो नहीं, मत बदलना। अरे भाई, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी बातें हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें हैं, और सभी बात हैं, जो तो मत दो तो पद। बट आई होल्ड ऑन टू वन मार्ग। इसी को निष्ठा कहते हैं ना। 10 रास्तों से एक मार्ग में जाना कोशिश करोगे तब नहीं पहुंचोगे। एक मार्ग डिसाइड कर लिया, उसके बाद परमानेंटली खड़े पकड़े रहो उसको, बस खत्म ही बात। महाराज इसी को निष्ठा कहते हैं ना। हाँ, whatever it is. Is that okay, Kundu? Yes, Maharaj, समझ में आ गया। Yes, understood. Thank you, Maharaj. We have discussed it. So क्या है कि you have got a mantra, you have got certain instructions, follow them. उसके बाद ये गाइडलाइंस हो गई। उसके बाद में from within or someone from शास्त्रस अगर कुछ बात आवे तो मेन चीज को डिस्कस वो चेंज मत करो, होल्ड ऑन करो। ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। हो गया, क्वेश्चन हो गया? हाँ महाराज। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन था ना, इनिशियल फेथ। सेकंड क्वेश्चन पहले वो इससे पूछ लिया। अच्छा ठीक है, डिस्कशन हो गया। सतीश जी। अच्छा, सुबीर मजुमदार। प्रणाम महाराज जी। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, इन द 9th saying of Swami Virajananda, he talks of duration of japa and meditation and says at least 2 hours morning and 2 hours evening. My question is that if we can't do 2 hours morning evening, and if we can split it into say 3 to 4 times a day, 1 hour, will that be effective? Because on some days it may not be possible. No, it is not. For most of the people it is not possible. और अगर ये तो इंस्ट्रक्शंस हुए, आगे पढ़ो तुम आके, अभी जो है 23 इंस्ट्रक्शंस है, कितने पेज हैं? 23 पेजेस हैं या जो है, उसके बाद में पढ़ोगे तो वहां पे ये भी आएगा, जो भी बात कर रहे हैं उसका आंसर भी है। वो कहते हैं कि बात छोड़ ब्रेक कर करके पढ़ना चाहिए, ये भी कहते हैं। जी। तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम नहीं, 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, एक प्रहर जैसे बोलते हैं ना। तो 28 मिनट्स का क्या है, एक 48 मिनट्स का होता है एक। जी। प्रहर नहीं होता है, क्या होता है, 48 मिनट्स का एक वो होता है। वो उतना करो एक बार में, उसके बाद ब्रेक कर लो, कोई बात। जी ठीक है। वो जो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, आपको चेंज करना पड़ेगा। जी। Next question, Maharaj. In the 11th saying, Swami Virajananda says that after continued practice of japa and meditation, at some stage the mind becomes the guru. My question is, how does the aspirant realize that the mind is becoming the guru? How can he be sure that it is not the ordinary intellect guiding him? You see, अगर ordinary intellect भी if it is guiding rightly,
जी यानी वो भी अगर इंटेलेक्ट ये बोल रहा है कि देखो मैं 2 बार ध्यान कर रहा था, अब मेरे को 4 बार करना चाहिए। Now the जी जी ordinary intellect also is not guiding wrongly. जी 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 It's just on doing it. It's very difficult to differentiate between real guru and ordinary intellect. At times guru also, internal guru जो है वो intellect के माध्यम से ही तो guide करेंगे। जी जी इट बिकम्स मोर एंड मोर रिफाइंड। हाँ, it has become more and more refined and gradually एक stage will ऐसे भी आ जाएगी, तब आपको उसके बाद में कोई जरूरत नहीं, आपको जब भी जरूरत होगी वो बताते जाएंगे, चले जाएंगे। जी Your जी mind yourself will guide you at every moment. जी 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 ठीक है महाराज। इन द थर्ड क्वेश्चन 21st saying में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, when God through his boundless mercy through the guru has imparted the siddha mantra, know that he has given himself away freely. Now we have seen some aspirants who forget even the name of the guru after initiation, what to speak of the mantra. Now why does this happen? ऐसा होता क्यों है? After all God chose him and gave him the mantra. नहीं, भगवान ने देखो, भगवान ने तो सबको सारे संसार के ऊपर भगवान ने ही तो कृपा की है। जी जी भगवान का तो काम ही कृपा है। अच्छा तो भगवान तो केयरलेस व्यक्ति को भी कृपा करते हैं और केयरफुल व्यक्ति पे भी कृपा करते हैं। हाँ, तो भगवान की जो कृपा वायु तो है, बह ही रही है, भगवान को क्यों प्रेम करते हो? भगवान के लिए कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं है, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमने पाल तोड़ ताना है, किसी ने पाल ताना ही नहीं है, किसी ने आधा पाल ताना है, किसी ने पूरा पाल ताना है, और तुम भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? हाँ आपकी बात सही है महाराज, कृपा तो उसने बराबर की है दोनों तरफ। हाँ, तो डोंट ब्लेम गॉड। राइट हाँ, यू हैव टू स्ट्रगल, देयर इज नो अदर वे। सच पूछा जाए इसीलिए ये भगवान की कृपा लेके काफी झमेला होता है। जी जी इसलिए वो जैसा मैंने कहा, जैनिज्म में कृपा की बात उन्होंने उड़ाई दी है। अपने पुरुषार्थ से करते रहो ना बाबा। जी जी ओनली थिंग है इसके कहीं अहंकार ना आ जावे, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट है महाराज। इसी बात में महाराज एक चीज मैंने रियलाइज किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ग्रेस। अगर आज ठाकुर आके बोले क्या चाहिए, इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि व्हाट डू आई वांट। आई एम रियली नॉट रेडी फॉर हिज ग्रेस। मे बी most of the time I am not ready for his grace. Suppose God just now comes in front of me and says, what do you want? It will be very difficult for me to say what do I want. हाँ, तो वे फॉल्ट हमारे साथ ही है, और अगर अच्छा काम है, साधना कर रहे हैं, तो भी हमारे साथ ऊपर डिपेंड करता है। Why do you bring grace there? ठीक महाराज। लास्ट क्वेश्चन महाराज, इन द सेम सेइंग he later goes on to say, the more you realize that God is nearer and dearer to you than the nearer and dear ones, the more you will be recipient of his grace. Now how does this realization come that the God is nearer to you than your nearer and dear ones? Because God is not tangible like our near and dear ones. तो ये feeling कैसे आती है कि God is nearer to you? How to develop that sixth sense or whatever you call it, Maharaj? ऐसा है कि as you go on doing साधना, जी तुम्हारा ये है टेंजिबिलिटी का अर्थ ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे हमारा बच्चा, हमारा वाइफ तो साथ में है, तो वेरी टेंजिबल है, ऐसा हम सोचते हैं। बट दैट डज नॉट मीन अगर हमारे पिताजी दूर हैं तो भी वो हमारे तो निकट हैं। माँ जो है वो दूर होते हुए भी हमारे निकट है। तो इवन सांसारिक जीवन में भी टेंजिबिलिटी का कंसेप्ट जो है केवल फिजिकल टेंजिबिलिटी नहीं है, वो साइकोलॉजिकल टेंजिबिलिटी भी होती है। जी जी तो इट इज नॉट दैट इन आध्यात्मिक जीवन में तो साइकोलॉजिकल टेंजिबिलिटी या जिसे कहते हैं, अब जो भी कहोगे वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट दैट डज नॉट मीन दैट जब जैसे ठाकुर हैं तो ठाकुर को तो डायरेक्टली दिखाई देते थे। जी
लेकिन ठाकुर और दूसरे लोग तो उनको नहीं देख पाते थे ठाकुर के पास में। तो वो जी कहाँ किस लेवल पे होता था ये बताइए। क्या फिजिकल टेंजिबिलिटी, अगर फिजिकल टेंजिबिलिटी होती तो हम क्यों नहीं देखते ठाकुर के। ठाकुर को ठाकुर ने रामलला को देखा था तो हम क्यों नहीं देख रहे थे। जी जी ठाकुर तो फिजिकल टेंजिबिलिटी करते थे, लेकिन हमको तो नहीं दिखते हैं रामलला। जी 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 What does it mean? That means there is a very different level on which the spiritual tangibility होती है। यस 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 महाराज। It's not that physical tangibility as we think. जी 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 We become very sensitive, so sensitive that we actually start feeling the presence. फीलिंग द प्रेजेंस, practicing the presence of God, that's what Practice comes. बार बार बोलते हैं practice the presence of God जो है ये एक very important साधना है। जितना आप करते जाएंगे उतना आप भगवान की टेंजिबिलिटी को, प्रैक्टिस को, प्रेजेंस को फील करते हैं। उतना ही फील करेंगे। दैट्स ऑल महाराज, वेरी गुड आंसर, थैंक यू। प्रणाम महाराज। शिवानी जी महाराज प्रणाम। महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है डू नॉट टेल एनीबडी एल्स एक्सेप्ट द गुरु द रियलाइजेशंस, द विजन्स और सिमिलर एक्सपीरियंसेस दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मे ब्रिंग टू यू। सो महाराज माय क्वेश्चन इज व्हाई इज इट सो? Because it is secret as well as sacred. Yes. हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातचीत होती है तो क्या सबके सामने बताई जाती है क्या? हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बातचीत हुई तो वो क्या बाहर बताते हैं क्या? क्यों? बिकॉज इट इज सीक्रेट, पर्सनल। तो साधना में भगवान के साथ में जो रिलेशंस होते हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये पर्सनल, वेरी इंटीमेट, पर्सनल होते हैं। उनको बताया नहीं जाता, जैसे हस्बैंड वाइफ की बातें बाहर नहीं बताई जाती। एक कारण। सेकेंड इज इट इज सैक्रेड, पवित्र है। सांसारिक को लोगों को कहने से क्या फायदा? पहला उसका उपयोग नहीं होगा, संसारी लोग समझेंगे भी नहीं, और होगा दूसरे लोग इधर उधर जाके बात करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे इसको भगवान का दर्शन हुआ। और ठाकुर को है, ठाकुर का दिखता था, उसके बाद ठाकुर को कितना तंग करते थे लोग। तो इसलिए उसको उपयोग लोगों के लिए बताने से उनके लिए कोई यूजफुल नहीं होगा। निंदा करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और तीसरी बात हम पूछते हैं, आप क्यों कहना चाहते हो? ईगो बढ़ेगा। Why do you want to say? महाराज वो ये हो जाता है कि अगर हम कुछ विजन या कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट। तो वैसे तो हाँ, मैं तो ये मम्मी के साथ ही हाँ करती हूँ। हाँ, तो आध्यात्मिक आपसे आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ होंगे, गुरु जैसे होंगे, और आपकी बात को सीक्रेट रखेंगे, ऐसा सोच समझ के आप बता सकते हो, नहीं तो सबको नहीं बता सकते। ठीक है। तो ये मैंने वेरियस रीजंस बता दिए तुमको जी। हाँ, कि वो सीक्रेट है, सेक्रेट है, सांसारिक लोगों से कहने के उपयोगी नहीं होगा, निंदा कर सकते हैं, और कहना हो तो केवल कोई आध्यात्मिक गुरु जैसा होए, आपसे श्रेष्ठ होए, उसको कहना नहीं तुम्हें। ओके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th पैराग्राफ में जैसे भी मेंशन किया है, नॉट गुड फॉर हाउस होल्डर्स टू प्रैक्टिस प्राणायाम और योगा इन एक्सेस। व्हाई? बिकॉज नाउअडेज एवरीवन इज आफ्टर योगा एंड डूइंग प्रैक्टिसेस, मतलब एक एक दो दो घंटे तक लोग कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड एज मेंशन। एब्सोल्युटली नॉट गुड। जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। एक वो ढोंग बना रहे, कुछ बना लिया है। कुछ ऐसा है कि कुछ टू सम एक्सटेंट इट इज यूजफुल। मैं जानता हूँ एक सज्जन को प्राणायाम करते करते उनको लंग बर्बाद हो गए थे। एक्चुअली जानता हूँ, बहुत देर तक कुंभक करके, बहुत देर तक लंबा सांस लेके, बहुत देर तक लंबा करते थे, जो लंग्स से ना वो फेफड़े जो है वो फट गए थे। एम्फीसीमा हो गया।
तो प्राणायाम को थोड़ा सा करो, वो शरीर के लिए अच्छा है। थोड़ा सांस लेना अंदर, सांस लेना निकालो, वो लंबा कर सकते हो, लेकिन सांस को रोक के कुंभक करना, खास करके अंतर कुंभक भयानक। अगर रोकना भी हो तो बाहर करो। उसके साथ में अगर जप कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन इतना करने की क्या आवश्यकता। इतना उद्देश्य केवल ये है कि आपका शरीर ठीक रहे, प्राण ठीक रहे और ध्यान जब ठीक रहे। महाराज वो डिजीजेस के लिए ही बताते हैं ना कि ये चीज ठीक होएगी, हाफ एन आवर करो, 15 मिनट्स करो, इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, हाफ एन आवर 15 मिनट्स की कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ। लेकिन महाराज जो बताने वाला हो वो समझदार होना चाहिए, वो जानकार होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है महाराज जी, महाराज। आजकल जो ये योग हो रहा है ये एक्चुअली योग नहीं है, ये एक्सरसाइज है और नाम योग का दिया गया है। नहीं तो ठीक है नहीं, ना, योग है। योग सुनो, योग के दो भाग हो गए ना। हाँ, और स्वामी अर्जुन ने वो भगवान ने तो गीता में उसको कर्मयोगी बना दिया था। जी तो योग शब्द के कई उपयोग हैं, तो करो उसके हाथ। रामदेव जी बताते हैं महाराज वो कुछ कुछ डिजीजों को हटाने के लिए। हाँ तो ठीक है, अब भाई वो ऐसा है कि वो जिम्मेदार होना चाहिए, जानना हाँ, वही चाहिए, तो। जानकार होना चाहिए। जी। मैं मानता हूँ अगर आपका सांस ठीक से चले ना तो बहुत से बीमारी कम होगी, आपको स्वस्थ श्वास अच्छा रहेगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे स्वस्थ रहने के और सारे उपाय हैं। हाँ। एक 40-50 बरस की उम्र के बाद में खाना आप आधा कर दो, आप देखेंगे कि आप अच्छे स्वस्थ ज्यादा रहोगे। पेट भरकर ज्यादा भर भर के खाएंगे तो नींद भी ज्यादा आएगी, आलस आएगा और शरीर में हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, क्या क्या होगा। तो महाराज जनरल हाँ, हाँ, कितनी उम्र के बाद बोला आपने? 40-45 के बाद। अच्छा, ठीक है महाराज। the last question है, how is it possible to give 100% to God? It must be the bhakti or prarabdha or sanchit karmas of past births, or we can develop now also. तो वी कैन डेवलप इट नाउ ऑल्सो। क्या ये प्रारब्ध कर्म को काहे लाते हो बीच में बाबा? प्रारब्ध कर्म हमारा प्रारब्ध नहीं है इसलिए हमारी भक्ति नहीं हो रही है, ये कोई आर्गुमेंट है? महाराज क्योंकि कई लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं भक्ति में, मतलब जैसे बचपन से ही हैं और उनको और बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद उनको पहले से ही प्रारब्ध की वजह से ऐसा होता होगा, इसलिए हो पूछा। सकता है उनके प्रारब्ध कहो या फिर उनके फैमिली के संस्कार कहो या फिर बचपन में उनको गुरु ने मार्गदर्शन दिया। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग आउट दिस? अगर खुद को तुमको लगता है कि तुमको करना चाहिए तो करो, और मेरा प्रारब्ध नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये दिस इज नो आर्गुमेंट, दैट इज माय पॉइंट। प्रारब्ध को किसी के अच्छे बुरे के लिए बार बार लाना इस नहीं। तुमको अगर तुम लगता है कि मेरे बुरे संस्कार हैं तो उसको प्रयत्न पूर्वक अच्छे करने का प्रयत्न करो, तो ये भी तो प्रारब्ध हो गया। जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रारब्ध को मैं लाना नहीं चाहता। देयर इज नो रीजन फॉर इट। प्रारब्ध क्या है, वो हो गया ठीक है, अच्छा है, कोई बचपन से ही अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है। बट भाई आर यू अननेसेसरी गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू इट? इफ यू वांट टू बिकम मोर बेटर यू स्ट्रगल। और तुमको अगर स्ट्रगल की बात लगेगी तो हम यही कहेंगे कि तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा था इसलिए स्ट्रगल किया, तो हो गई बात। तो प्रारब्ध कहाँ आ जाता है? अच्छा काम करने में भी प्रारब्ध है, बुरा काम करने में भी प्रारब्ध है। अरे तुम्हारे जूम मीटिंग में मिल रहे हो, इतने भक्तों से मिल रहे हो, तो ये अच्छा प्रारब्ध कहोगे? तुमने तो अपने प्रयत्न से किया, अपनी इच्छा से किया, तुम्हारा अपनी विश थी, यू हैड ए चॉइस, so you are doing because of your that choice। और उसने प्रारब्ध लाने किया। Don't give too much importance to प्रारब्ध। महाराज हम लोग जब विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो रियलाइज सोल है वो प्रारब्ध को तो देखता ही नहीं है, क्योंकि जानता है कि देह नहीं है इसलिए प्रारब्ध भी नहीं है। हाँ। इसी प्रकार हम जैसे मनोबुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं अपने आप को कि हमें इनमें से कोई नहीं है, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, तो हम उसी तरह हम अपने आप को यही बता सकते हैं कि
because I am Atman, therefore I don't have any prarabdha. ये No, she is talking not in that context. अच्छा, This is not talking in that context. वो नहीं बता, ये तो साधना के बारे में है, जीवन में कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में है, वो इसके बारे में है। तो उसके अंदर ये कह सकते हैं कि अगर अच्छी इच्छा हुई, हमने संघर्ष किया तो अच्छा प्रारब्ध हुआ, लेकिन वो उसको इतना अधिक इम्पोर्टेंस देने की जरूरत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा प्रारब्ध को इम्पोर्टेंस ना देना। शिवानी, ये बात ओके? जी महाराज, थैंक यू। आइए दिलीप भाई। यस, प्रणाम महाराज। प्रणाम अरे महाराज। बाबा, आपके तो क्या है, एक लिस्ट है, फटाफट। प्रणाम महाराज। महाराज जी, हाँ, पहला सवाल है सीरियल नंबर 2, पैराग्राफ नंबर, do not talk of your defects and blemishes to others. You lose thereby your self-respect and the respect of others for you. Maharaj ji, now my question is, here in Zoom meeting, we discuss certain personal questions also. Are No, we doing? we discuss the questions, personal questions, as general questions. Yeah, exactly. But it has to be a general question. अब जनरल क्वेश्चन में तो कई बार आ जाता है कि भाई हमारे अहंकार को कैसे दूर करें, काम क्रोध लोग को कैसे करें। तो ये तो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, जनरल क्वेश्चंस भी हैं ये। पर हाँ, पर ये है कि साधारण लोगों के लिए बताया गया है, हम साधकों के लिए नहीं बताया गया। We can always discuss and we are not going to blemish any other or look down at others. ऐसा है, हाँ ठीक है, जो साधकों के लिए ऐसा है कि इससे क्या होती है, हमारी जो एनर्जी है, हमारा कंसंट्रेशन है, वो डिसयूज हो जाता है। हम बाहर क्यों बताना चाहते हैं, पॉइंट इज को बाहर बताने की इच्छा जो है उसको मत नहीं रहना चाहिए, उसको साधना के रूप में ले सकते हैं आर्ग्यूमेंट। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू। ओके, राइट महाराज जी। यस, पैराग्राफ नंबर 3, whenever any idle thought arises in the mind, try at once to put it down forcibly. My question is, how can it be done so forcibly? Try to think of something else. अगर आपको पता चल गया कि ये सब फालतू का विचार आ रहा है मेरे दिमाग में, तो उसके बदले आप जूम मीटिंग की चिंतन चालू कर दो, या फिर आप कोई किताब पढ़ने लग जाओ, या अपने इष्ट का, भगवान का चिंतन करने लग जाओ। इस प्रकार से दूसरे प्रकार का चिंतन चालू कर दो, क्योंकि उसको दबाना कठिन होगा जी। और तीसरा है, ये विचार बार बार कहो कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरा, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, इसके बदले में भगवान का चिंतन करूंगा तो ठीक रहेगा। और तीसरी बात ये भी है कि उसके साथ में उसकी एक हैबिट बना लो जी। जब ध्यान की एक हैबिट बना लो और हमेशा उसमें बिजी रहो, यानी टाइम नहीं देना चाहिए, यानी दूसरे विचारों के लिए टाइम होना ही नहीं चाहिए अपने पास। जी, बराबर, राइट महाराज जी। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ नंबर 5, even without practicing yoga, pranayam is attained automatically if one remembers and thinks of the Lord and does japa with a yearning heart. This is the paragraph. Maharaj ji, my question is, how is it possible without yam, niyam, that is Ashtanga Yoga? The yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi, these are the fundamental principles for the beginners of the self-realization. तो इसके अंदर ये जो बताया है, नहीं, ऐसा है कि प्राणायाम जो है ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 5वां स्टेप आ जाता है। तो ये प्राणायाम जो है उसको योग में 5वां स्टेप माना गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भक्ति शास्त्र में बाकी सब में जो है उसको स्वीकार किया गया है, अलग से भी स्वीकार किया गया है। और यह भी डेफिनेट है कि अगर आप ध्यान जब करेंगे, बैठकर करेंगे, एकाग्रता से ध्यान को करेंगे, तो अपने आप प्राणायाम हो जाएगा, कुंभक अपने आप हो जाएगा। ये भी वेल नोन फैक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको तीनों
बराबर स्टेप से करना चाहिए। नहीं महाराज जी ये तो बराबर है, पर मेरा सवाल एकेडमिकली ये था कि यम नियम जो है ये ज्यादा आवश्यक है ध्यान और साधना की ओर जाने के लिए, प्रथम सीढ़ी है और यहाँ की नहीं। न ऐसा है कि आप यहाँ पे प्राणायाम का प्रश्न कर रहे हो कि यम नियम का कर रहे हो? नहीं महाराज जी मैं प्राणायाम का प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये इवन विदाउट प्रैक्टिसिंग योगा प्राणायाम इज अटेन्ड ऑटोमेटिकली इफ वन रिमेम्बर्स एंड थिंक्स ऑफ द लॉर्ड एंड डज जपा विथ ए यर्निंग हार्ट। तो महाराज जी ये कोई प्राणायाम के लिए इन्होंने ये सेंटेंस लिखा है या नहीं ये हाँ, जो अगर प्राणायाम की बात करो तो ये प्राणायाम जो है वो तो यम नियम के बिना भी हो सकता है। हो सकता है, हाँ बस यही बात है, खत्म हुई बात। Okay, so this is only for pranayam, this paragraph is. हाँ। Okay, then no. पर महाराज जी एक आउट ऑफ दिस पैराग्राफ यदि हमें ईश्वर की ओर जाना है स्पिरिचुअलिटी में, तो ये यम नियम एक बहुत जरूरी आवश्यकता है या नहीं? देखो 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 सत्य यम बोध नियम आसन ये है, यम नियम जो है ये योग सूत्र में बताए गए हैं। ये पतंजलि में बताया। भक्ति शास्त्र में दूसरी चीजें बताई गई हैं, वैधि भक्ति, पराभक्ति, तो उसमें विवेक विमोक, अच्छा, और इसमें विवेक विमोक एटसेट्रा करके भक्ति शास्त्र में बनाया गया है। भक्ति योग स्वामी जी का पढ़ना या व्याख्या। फिर ज्ञान योग में आएंगे तो उसमें विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और सत्संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 बताया है। तो ये और पातंजल योग सूत्र के ये चारों योगों में ये प्रारंभिक चीजें भिन्न है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि यम नियम प्रारंभ करना ही पड़ेगा। विवेक भक्ति शास्त्र में शम दम उपरति है ना, ज्ञान योग में है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति कही गई है। बताइए तो फिर ये अलग अलग शास्त्र में अलग अलग है। महाराज विमोक क्या होता है? विमोक अभी आपने बोला, वो पढ़ना देखना पड़ेगा। है विवेक विमोक है, विमोक यानी हटना, संसार से अपना अलग रहना, एकांत रहना, इस प्रकार का। अभी याद नहीं इमीडिएटली मेरे को। महाराज जी पैराग्राफ नंबर 7, whatever be the time you devote to jap and meditation, even if it be only 10 or 15 minutes, do it with all your heart and soul. The Lord is indweller, the inner guide. He sees your heart. He measures is not how long you meditate on him, nor how many times you do japa, but by your inner longing. Maharaj ji, here time of jap is not material, but inner longing is very much material. एक बार यहाँ पे ये लिखा है, दूसरी जगह ये लिखा हुआ था जो मजुमदार साहब ने बताया कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को करना चाहिए, यूजुअली, जिसका आपने जवाब दे दिया था। अब नाउ फर्दर माय क्वेश्चन इज, बट फॉर ठाकुर इट वाज फॉर 3 days and 3 nights. Maharaj ji, in normal, Maharaj and Swami, though having inner longing, how much time or rebirth required? इनर लॉन्गिंग ठाकुर ने तो बोल दिया ना, 3 दिन 3 रात तक रोने से 3 दिन 3 रात तक रोने तो हो जाएगा। हाँ, यही बोलिया ना, तुम्हारा यही प्रश्न है ना? हाँ, नहीं ठाकुर ने ये ठाकुर तो बोलते हैं कि व्याकुलता होके 3 दिन 3 रात तक करो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यस। तो अब तुम तुम्हारे व्याकुलता की बात करो, तुम्हारी जितनी व्याकुलता है उसके अनुसार होगा। 3 दिन 3 दिन, किसी ने कहा कि फिर 3 महीने में भी हो जाएगा, और ऊपर लिखा है 10 मिनट में भी हो जाएगा है? ऊपर सेंटेंस में लिखा विदिन 10 minutes इफ यू आर नहीं 10 मिनट नहीं, वो तो व्याकुलता को बताया गया है कि 10 मिनट्स अच्छा तरह करो तो 1 घंटे के बढ़ने 1.5 घंटे के बदले 10 मिनट करना ही ठीक रहेगा, ये बताया है। ये भगवत दर्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वो तो ठाकुर ने बोल दिया है 3 दिन 3 रात तक रो के देखो ना। जी महाराज। तो क्या आपने क्या डिसाइड किया फिर, ये बताइए।
महाराज जी जितना बने हर वक्त ठाकुर के अच्छा माइंड अच्छा, नहीं नहीं, वो अब वो पर्सनल बात है, नहीं, अब मना कर दिया हम लोगों ने, पर्सनल बात नहीं करना है। महाराज जी का सीरियल नंबर 10। Above all, it is imperative to observe brahmacharya or perfect continence, sanyam. Violation of these restrictions is liable to cause heart or brain disease. महाराज जी ये इन्होंने इतना बड़ा भारी बम सेल दिया है। महाराज जी इस brahmacharya is so much necessary both internally or externally, otherwise a sadhak gets a heart and a brain disease. ये सेंटेंस में बताया हार्ट और ब्रेन डिजीज आ जाएगा यदि आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो ये तो सब हाँ क्या है, डिजीज इरेगुलर लिविंग से डिजीज आती है। यस यानी फूड हैबिट, प्योर एयर, कंट्रोल ऑफ स्पीच, सो मेनी रूल्स होने चाहिए, तब आपका जीवन, शारीरिक और मानसिक जीवन ठीक रहेगा। और अगर नहीं, उसका सेंटेंस पढ़ो तो क्या लिखा है। हाँ महाराज जी ये मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। हाँ, Above all, it is imperative to observe brahmacharya or perfect continence. Violation of these restrictions is liable to cause heart or brain disease. हाँ, वो देखो उसमें, ये देखो these restrictions, ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बताए हैं। महाराज प्राणायाम के विषय में बता रहे हैं। नहीं, ब्रह्मचर्य भी है, ये सब प्राणायाम के विषय में बता रहे हैं महाराज। नहीं महाराज ये सारा इंक्लूसिव है। प्राणायाम महाराज जी, प्राणायाम ग्रस्तों के लिए ज्यादा, ग्रस्तों के लिए प्राणायाम ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बता रहे हैं। प्राणायाम करने के अभिलाषी हो उनके लिए यथा समय परिमित पुष्टिकर सात्विक आहार, नियमित कार्यकलाप, उद्वेग शून्य जीवन, श्वास निर्जन स्थान, विशुद्ध वायु, कोष्ठ शुद्धि, मित भाषिता, ये सब आवश्यक है। प्लस ब्रह्मचर्य आवश्यक है। इन सबका प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। हृदय रोग और मस्तिष्क रोग होने की संभावना है। नहीं माने तो ये हो जाएगा। प्राणायाम के साथ में अगर ये नियम नहीं मानेंगे तो हृदय रोग हो जाएगा, मस्तिष्क रोग हो जाएगा। समझ गए दिलीप भाई? इट्स वेरी रिस्की प्राणायाम। हाँ भाई, नहीं रिस्की नहीं है, शुद्ध जीवन बनाने का है। अच्छा, जीवन को शुद्ध करो, इम्पोर्टेंट बात ये है। अच्छा, now serial number 12. If a sadhak has more than one chosen ideal, then what to do? एक से ज्यादा यदि हमारे आइडियल है तो हमें किसको एक को चुनना चाहिए या दो को चल सकता है, ये सवाल है। एक तो पहले एक चुनो, वन आइडियल। यस, ठाकुर आइडियल है हमारे। और उसके साथ में दूसरे आइडियल में क्या है, पर ठाकुर को हमने एक काम से एक के लिए तो चुना, और लेकिन हम मेडिकल काम कर रहे हैं तो भाई मेडिकल के लिए तो मुझे दूसरे किसी को लेना पड़ेगा ना, जो अच्छा आदर्श डॉक्टर होगा उसके मेरे आइडियल लेना पड़ेगा। इस प्रकार से दूसरे आइडियल हो, एक मुख्य आइडियल होवे और उसके बाद में दूसरे आइडियल हो सकते हैं, कोई बात। ओके, राइट महाराज। पैराग्राफ नंबर 18। Maharaj ji, this paragraph number 18 says, do not read scriptures, otherwise mind can get confused and troubled, and so on. So, spiritual knowledge has to be acquired direct from the Guru. Maharaj ji, my question is, without reading spiritual books, how a person diverts towards spiritualism and a yearning for realization be created? हाँ ठीक है, शुरू में संसार में मन बहुत लग रहा है ना, हाँ, तो आपको जरूर किताब पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, जूम मीट अटेंड करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तब धीरे धीरे मन आपका भगवान में लगेगा, आध्यात्मिक जीवन में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। लेकिन रीड गुड बुक्स, गुड ग्रुप्स, सी टू इट दैट यू डोंट गेट कंफ्यूजन नहीं होवे, ये ध्यान रखना। ओके, आप यानी
वो हरे कृष्ण में भी जाएंगे और आर्ट ऑफ लिविंग में भी जाएंगे और भागवत भी पढ़ेंगे और जूम भी करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की तरफ मन जावे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना। Right, जी महाराज। Now paragraph number 21. Only by doing will you be able to repay a part of the debt to him. Maharaj ji, my first question is it a debt that sadhak owes to a guru? My second question is, if yes, then why part? Full debt should be repaid, and that how is to be done? पहला महाराज, बात है, गुरु ऋण तो है। हम अच्छा गुरु नहीं, से यहाँ पे दोनों गुरु ले लो, एक तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु। यस, तो उनसे सब आप सीख रहे हो, तो हाँ। आपको ये नहीं लगता है कि ये एक डेट है? डेप्ट है, पक्का है। ये लगता है कि नहीं लगता? ऋण है। पहली नहीं, बात तो ये प्रश्न ये तुम्हारा है, डू यू थिंक नहीं दैट महाराज देयर जी, इज अ हमें ग्रेट डेप्ट लगता है। नहीं महाराज लगता? जी, नहीं लगता है। उसका कारण है कि गुरु से शिक्षा लेना कभी भी डेट नहीं होता है। ये भावना हमारे मन में नहीं रहती कि हम उनके कर्जदार हैं। ये मेरा पर्सनल है कि नहीं नहीं, ये ऐसा है गुरु कि का मतलब ये आशीर्वाद है है। कि ये गुरु मतलब ये का है कि आशीर्वाद। तुमने सुनो, मतलब ये है कि तुमने जो सीखा है उसको एक कान से सीखा है और दूसरे हाँ। कान से निकाल दिया, उसको रखा नहीं आपने। महाराज जी, ये तो अगर आशीर्वाद। अगर आप पॉकेट में रखेंगे, आपको पैसा मिला, हाथ से मिला पैसा, एक हाथ से पैसा मिला, दूसरे हाथ से अपने आपने यदि दान कर दिया, तो वो डेट नहीं होता। लेकिन आपके ने अगर पैसा आपको मिला है, आपने जेब में भर दिया और भरते चले गए, तो हाँ, वो डेट हुआ कि नहीं हुआ? तो कान से आपने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो डेट नहीं हुआ। महाराज जी, ये हमने कहा कि हमने दूसरे कान से निकाल लिया। मेरा हाँ, तो मेरा अगर अगर आपने अंदर रख लिया है तो वो डेट हुआ कि नहीं हुआ? ऋण डेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। हुआ? आप उसको चुकाना पड़ेगा चुकाना ना, उसको पड़ेगा, हाँ। जीवन में उतारना उतारना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, दैट इज हाँ, यानी वही तो बात हो महाराज रही है। जी, इट कैन नॉट बी रिपेड। इट कैन नॉट बी रिपेड। आई हैव टू accept in myself and I can give to others also, but it नहीं cannot ना, be वो repeated. नहीं, इट कैन नॉट बी। जो ऋण मिला है उसको हम रीपे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उतारना ये है, उसको वही ऋण में रिप्रेजेंट है। कर, ये बात वो है। हम इसको जीवन में उतारेंगे और किसी को भी मार्गदर्शन देंगे, पर ये गुरु का ऋण हम गुरु से नहीं चुका सकते। गुरु के कभी भी नहीं, किसी भी तरह नहीं सिखा हाँ, सकते। कभी भी नहीं चुका। दैट इज माय ठीक है, क्वेश्चन। ये बात मान ली हमने बात। बस दैट वाज महाराज हम लोग तो जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, ठीक उसी तरह गुरु ऋण भी है। हाँ, उसको गुरु ऋण चुका, भी है। हाँ, गुरु ऋण को भी मतलब अपने प्रैक्टिस से चुकाना पड़ेगा। पूरी तरह नहीं सिखा सकते। यहाँ पे ये कहा है कि अगर चुकाना है तो 100% चुकाना, मतलब ये कि नहीं चुकाना। हाँ। Maharaj, now my on 27 paragraph, the Lord must have his entire due settled and squared to the last farthing. What is the meaning of this sentence? Paragraph number 27. क्या बोला? Paragraph number 27 है महाराज जी में, ये है the Lord must have his entire due settled and squared to the last farthing. हाँ, या मतलब अभी ये हो है, गए तो हाँ, ये ऐसा है कि भगवान को जो है ना वो सौदेबाजी से नहीं पाया जा सकता। हाँ, ये बात कह रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करी और भगवान मिल जाएंगे, ऐसी नहीं बात। ठाकुर ने कितनी तपस्या की थी बाबा, स्वामी जी ठाकुर ने कैसी कठोर तपस्या की थी। बराबर। ठाकुर तो पता नहीं कि 6 साल तक सोए भी नहीं, व्याकुल हो के रोते थे, किसी चीज का चिंतन नहीं था बाकी संसार का। तो इसलिए भगवान को अगर प्रार्थना करना है तो पूरी मेहनत से करना पड़ेगा, आखिरी कौड़ी तक चुकाना पड़ेगा, ये मतलब। यानी चुकाना पड़ेगा मीन्स क्या महाराज जी? ये हिंदी में भी चुकाना, यही आखिरी लिखा है आखिरी चौड़ी कि मेहनत करनी पड़ेगी, ये मतलब। हाँ, परमात्मा तुमसे रति रति का हिसाब लेगा। हाँ, मतलब ये है कि हम हाँ, थोड़ा सा करेंगे और
सोचेंगे कि बस हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं। जी भगवान ने जो दिया है तो कहते हैं मैं पूरा लूंगा, हाँ, यस ये बात। जी। नाउ माय लास्ट वन, हम्म, serial number 35, paragraph number 35. They ought to know that there is no connection whatever between initiation or entering upon spiritual path and these trivial, mundane, sansaric matters. Maharaj ji, what is the meaning of there is no connection whatever between initiation or entering upon spiritual path and these trivial, mundane matters? सांसारिक आध्यात्मिक पथ में जाना और सांसारिक तुच्छ भोगों की तृप्ति करना, इसमें कोई संबंध नहीं। जी सीधा तो है। अच्छा जी महाराज जी, सीधा है तो। अच्छा, दिलीप शाह, देवाशीष। प्रणाम महाराज जी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 17 से, why japa and meditation is superior to the following things: visiting holy places or temples, reciting Bhagavad Gita or Chandi, going to the temple, ritualistic worship, remembrance of God, reading sacred books, godly conversation, retiring into solitude, and thinking about spiritual thoughts. All these things say they are not so superior equal to japa and meditation. देखो देखो देखो, एक श्लोक या बताता हूं मैं, प्रसिद्ध श्लोक है। प्रथमा प्रतिमा पूजा जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। ये जितनी आध्यात्मिक साधनाएं हैं उसको 4 लेवल में बता दिया, उनके अलग अलग लेवल हैं। पहला है प्रतिमा पूजा, एक मूर्ति बना ली, सुबह बैठ के आप न्यास करते हो, पूजा करते हो। अच्छा, दूसरी है जप स्तोत्रादि करते हो। तो इसमें तुमने जो लाइन बनाई नहीं, इतने सारे बताए ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा, है ना? जो अभी बोले ना, इतने सारे एक लिस्ट बनाई थी ना। हाँ जी महाराज जी। हाँ, वो सब लिस्ट आ जाती है प्रतिमा पूजा में, जप स्तोत्रादि में, शास्त्र पाठ इत्यादि। अच्छा जी महाराज। उसके बाद में है मानसी पूजा, जहाँ मानसी पूजा बैठकर ध्यान करना, ये हाइयर है। जी महाराज जी। और सोहम पूजा, भगवान के साथ में एकत्व का प्राप्त करना, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा साक्षात्कार करना, ये उच्चतम है। तो आपने जो वर्णन किया वो पहली 2 स्टेप्स में आती है, लेकिन मानसी पूजा, भगवान का ध्यान करना, ये है हायर, ये याद। जी महाराज जी, समझ में आया जी महाराज। थैंक यू महाराज जी। पॉइंट नंबर 22 में है, हाउ टू गिव होल माइंड टू गॉड। पॉइंट नंबर 22, हाउ टू गिव द होल माइंड टू गॉड। अच्छा, अब माइंड में क्या क्या चीजें हैं, तुमने प्रश्न किया है तो कर लेते हैं। होल माइंड, तो माइंड के पार्ट्स हो गए। एक है हमारी इच्छाएं हैं, हमारा थिंकिंग है, हमारे इमोशंस हैं, हमारा विलिंग है। ये माइंड के इतने एक्टिविटीज है ना। हाँ जी महाराज जी। तो हाउ द होल माइंड। अब हमारा क्या है कि भगवान को थोड़ा सा हम लाइक करते हैं, उससे और कुछ नहीं करते हैं, भगवान का थिंकिंग नहीं करते, लेकिन ये मतलब ये है कि पार्शली माइंड दिया। दूसरा है भगवान का थिंकिंग करते हैं, थोड़ा किताब पढ़ लिया लेकिन पूरा मन नहीं दिया। तीसरा है फीलिंग, भगवान को लव किया, थोड़ा सा लव किया लेकिन थिंकिंग नहीं किया भगवान के बारे में। चौथा है विलिंग, थिंकिंग, विलिंग और लाइकिंग, फीलिंग। ये आजकल क्या है ना, कॉग्निशन क्या है आजकल, मेंटल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो मेंशन के बहुत सारे फंक्शन हैं। हम थिंक तो करते हैं, भगवान की किताब तो पढ़ते हैं, लेकिन फीलिंग नहीं है, भगवान को प्रेम नहीं करते, इमोशन नहीं कर रहे हैं। और विलिंग, इमोशन भी है लेकिन भगवान को प्राप्त करने का संकल्प नहीं है, लक्ष्य नहीं है भगवान को। so many mental functions are there। अब आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। हाँ जी महाराज जी।
So if you give the whole mind to to God, then it is not possible to work in the world. नहीं डेफिनेटली Oh, भगवान का अच्छा। काम समझ के कर सकते हैं। यानी महाराज- आधा मन भगवान में देंगे, आधा मन संसार में लेंगे। और ठाकुर पहले ने तो कॉम्प्रोमाइज किया है ना, तुम संसार में हो ना, तो एक हाथ से ठाकुर को पकड़ो, ठाकुर को भगवान पकड़ो, को पकड़ो, और एक हाथ से संसार को पकड़ो। पकड़ो, अच्छा। काम पूरा होने से 50% दोनों से पकड़ो। 50% माइंड भगवान में दो, 50% संसार में दो। ठाकुर ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया आप लोगों के लिए। अब जैसा आपको ठीक समझे करो, Thank और you, माइंड महाराज। दे सको तो ठीक है, नहीं तो 50-50 करो। महाराज फिर काम होने के बाद दोनों हाथ से पकड़ो बोले। हाँ, ठाकुर बोलते हैं काम हो जाए उसके बाद दोनों हाथ से पूरा मन दे दो। ठाकुर को पकड़ो। कम से कम थोड़े समय के लिए तो हाँ, पूरा दोनों हाथ तय से करो। करो, भगवान को दो पूरे मन से। महाराज लेकिन हम लोग तो ये हैं, जैसा वो कहानी है ना, वो बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहा है, तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, और पीछे देख रहा है कि जूते को भी देख रहा है कि चोरी तो नहीं कर लेता। हमारा तो यही हाल है बाबा। मंदिर जाते हैं तुम भगवान आधा घंटा भी अगर ध्यान करते हैं ना, तो उसमें भी होल माइंड से नहीं करते, तो सारे मन की बात छोड़ दो। ये भाई प्रश्न है, ये तो सब सीधी बात है भाई। अभी हाँ जी, समझ में महाराज। आई बात कि नहीं? हाँ महाराज जी। तो महाराज जी, ये शास्त्र पहले में इसकी समझने की जरूरत थी क्या? इट इज एवरीवन नोज अबाउट इट। महाराज जी, आप अगर जब ध्यान कुछ कर रहे हैं, सडनली अगर कोई आ गया, आपको कुछ प्रश्न किया, कोई जरूरी थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, तो ये फिर उसमें की अटेंड करना चाहिए या उसको इग्नोर करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? अरे तुम संसार में हो, होल माइंड से नहीं दे सकते। ये तो प्रॉब्लम। महाराज यही तो प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बस चलने दो, और क्या करना है। एक हाथ ठाकुर ने बोला ना, 1% भी कॉम्प्रोमाइज करे फिर भी तो भी नहीं होगा। नहीं तो डू स्वामी नॉट ठाकुर डिस्टर्ब ने का साइन लगाइए। आधे मन से भगवान को ना 25% मन भगवान में दो, और 75% संसार में ऐसे ही चलना। तो बाबा कभी व्याकुलता आ जाएगी, जम के व्याकुलता हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, छोड़ छाड़ने की इच्छा होगी ना, तब होगा, नहीं तो नहीं। थैंक कभी यू। होगा, कभी होगा। थर्ड क्वेश्चन है महाराज तब जी। तक तो हम जीता रहेंगे कि नहीं पता नहीं। हाँ, चलो थर्ड क्वेश्चन। वो चांस आएगा भी कि नहीं आएगा। हाउ टू मेक गॉड योर वर्ल्ड? ये तो हो गया ना, सब सेम क्वेश्चन, हाँ, यही सेम क्वेश्चन। सेम आंसर जो सामने ऊपर बताया वो का वही होगा। ठीक है महाराज, हो गया, समझ में हो गया। Question number 4, kindly explain this state. Will a person following the spiritual practice regularly as taught by his guru can attain this? Then ये मैं पढ़ रहा हूँ क्या, this state, then you will find that in this world there is neither happiness nor misery, nor good or nor evil, attachment nor aversion, greed nor jealousy. Consequently, all the delusions, self-interest, and conflict will vanish, and no pairs of opposites can torment you there. All ideas of union or separation, of friend or foe, of high and low, of I and mine are non-existence in that play of yours with the Divine Mother. ये डिवाइन मदर का जो प्ले जो बताया है ना, तो ये समझ में नहीं आया महाराज जी, ये कैसे होता अरे है? भाई, ये आध्यात्मिक साधना करने से प्ले समझ में आएगा, ऐसे क्या समझ में आएगा? भगवान के साथ निरंतर भगवान में मन लगे रहने का। कभी भगवान में मन लगाया, प्ले ऑफ डिवाइन माइंड, तो माइंड आज ध्यान अच्छा ठीक से नहीं हो रहा है, आज अच्छा ध्यान हुआ है, कल जो था वो थोड़ी देर तक भगवान का अच्छा ध्यान हुआ था, फिर चला गया था। उसके पहले या आज के दिन जो है ध्यान हुआ है, उसमें आनंद आया है, कभी आनंद नहीं आया है। ये हुआ भगवान के साथ डिवाइन प्ले, अलग अलग प्रकार के आइडियाज होते रहते हैं। तो ये कैसे समझ में आएगा, बिना किए कैसे समझ में? महाराज जी, हम लोग तो सेल्फ रियलाइजेशन का बात करते हैं, तो उसमें मदर कैसे आ गया है? हम तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ, तो उसमें क्या आ गया? मदर का कंसेप्ट कैसे आ गया, डिवाइन अरे मदर ये कंसेप्ट? सेल्फ रियलाइजेशन, हे भगवान, हे भगवान,
अरे भाई वो गॉड को मदर कहो, गॉड शक्ति कहो, है, आत्मा कहो, सेल्फ रियलाइजेशन एक ही चीज है सब। ब्रह्म शक्ति की है। हे भगवान, ये बस भी क्वेश्चन है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ठीक। नॉनसेंस। और कुछ नहीं है महाराज जी, खत्म हाँ। हो गया। थैंक यू महाराज जी। अच्छा, अब कौन बचा? रीता। गीता विश्वास। Pranam Swami ji. हाँ बोलो। My question is that number 37, faith and devotion appear superficial in spite of sadhana. How to bring in true faith and devotion to the Lord in one's life? क्या बोला? How to cultivate true faith and devotion? अरे Because साधना के द्वारा होगा, बहुत साधना करना पड़ेगा। साधना करना पड़ेगा तब फेथ एंड डिवोशन होगा। सब किए जाओ जो गुरु ने कहा है, उसको इंस्ट्रक्शन जो है गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, हाँ स्ट्रिक्टली फॉलो करो उसको। ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये कोई हाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन। ठीक है, ओके हो गया जी। शांति मंत्र। अच्छा, ओ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों